Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in our previous video, we discussed the vocabulary for chapter number 1, German, which is Stefan, wie geht's dir? Today we'll be doing the grammar part 1, in which we'll be discussing the dative case. So अभी तक हमने किया है nominative and accusative. This time, this year, in 8th, we'll be starting with the dative case. So basically, आज मैं कराने वाली हूँ आपको pronouns of dative. In fact, pronouns and articles which are there in dative. Right. So we'll start with nominative and then I'll tell you what the nominative change into dative. So for nominative, the pronouns that we have are ish, du, er, sie, es. Then we have wir, we have capital Z, and we have small z. So this is I, you, she, it. Then here is us. Z, this capital Z is you in formal. And this Z is they. We also have ear, which is you all. Now we also have accusative of these, which were there in class 7th. In class 8th, we have the dative pronouns. So ish changes to mir, du changes to dir, then er changes to im, z changes to ear, s changes to im again, then fear changes to uns, capital Z changes to capital Ihnen, small z changes to small Ihnen, and ear changes to euch. Right? So mir is me, ish was I, mir is me, dear is you, im is him, ear is her. Sorry, he, her, it, we, us, again you formal, their, sorry, right, and these remain the same. So basically ish changes into mir, du changes into dear, er changes into im, z changes into ear, s changes into im, fear changes into uns, z capital, which is you formal, changes into capital Ihnen, then z small changes to small Ihnen, smaller Ihnen, and then ear changes to euch. You will have to learn all of these. Once you've learned these pronouns, this grammar would be very easy for you. Now when we come to articles in dative, so basically this is nominative, right? So these are the nominative articles, which are there, the, das, and then we have the, which is for plural, right? So there changes into them, the changes into their, das changes into them again, and the plural changes into then,
plus n. That is, n comes at the end. For example, in nominative case, we say this is for the. So for plural the, in nominative case, we say the eltern, because eltern is plural. Eltern means what? Eltern means parents. Now, because parents is plural, we use the plural. In accusative, this would be den. Right? For example, the Kinder. Now, if we want to say, now this the Kinder is singular. Sorry, the Kinder is plural. The Kind is singular, but the Kinder is plural. Now, because this the Kinder is plural, this is an accusative. This is a nominative. In dative, it would be den Kinder, and because there is an n at the end, right, this n will come here. So instead of den Kinder, it becomes den Kinderen. So the Kinder, which is plural, the children in nominative, will change into den Kinder in dative, and both of these translate to the children. So basically, again, you'll have to learn all of these. Once you've learned them, the grammar would be easy for you. Now I'll tell you the dative verbs, कि ऐसे कौन कौन से verbs हैं जिनके साथ ये pronouns और ये articles आएंगे. So dative verbs, basically ये वाले verbs दिखे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस केस में you will use all of these pronouns and all of these articles. These verbs are esgate, then we have wehtun, then we have fehlen, then we have schmecken, we also have gratulieren, and we have schaden, helfen. Right? In this chapter we have esgate. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारी ये 4 वर्ब्स हैं. चैप्टर नंबर 2 में यानी लेसन 2 में आपका शार्डन और हेल्फन भी है. लेकिन आई टेल यू दीज आर द बेसिक वर्ब्स. बेसिकली सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी वर्ब्स हैं डाटिव वर्ब्स, बट दीज आर द बेसिक वर्ब्स दैट यू नीड टू नो फॉर दिस चैप्टर. एसगेट का मतलब होता है बेसिकली हाउ आर यू के लिए जो यूज़ होता है. अब इसको आप सेंटेंस कैसे बनाते हो एसगेट से आप सेंटेंस बना सकते हो. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, टू वी गेट एस डियर, मतलब आप कैसे हो. ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे. अब आपको देना है फॉर एग्जांपल आंसर कि आई एम गुड. ठीक है, कि मैं अच्छी हूँ. तो आप क्या बोलोगे. अब देखो, तो आप क्या बोलोगे. नॉमिनेटिव में तो आप क्या बोलते. नॉमिनेटिव में आप बोलते ich bin gut. लेकिन बिकॉज दिस इज द accusative केस, हाउ डू वी नो दैट दिस इज द बिकॉज दिस इज द dative केस, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब एसगेट आ गई है. अब मैंने बोला था इनमें से कोई भी वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा केस dative. क्योंकि यहाँ पे एसगेट हुआ है तो यहाँ पे आप आई को इश नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नियर, है ना. क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि इश क्या बन जाता है, इश बन जाता है नियर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नियर गेट. गेटस को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे. तो नियर गेट एस, या फिर इसको आप नियर गेट्स भी लिख सकते हो या फिर गेट एस भी लिख सकते हो. तो नियर गेट एस गुड, कि मैं अच्छी हूँ, आई एम डूइंग गुड. वैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं. डियर का हमेशा आंसर क्या होगा, नियर. क्यों, क्योंकि डियर का मतलब होता है यू और नियर का मतलब होता है आई.
है ना। सो इसलिए डियर का होता है यू, मियर का होता है आई, की आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू, कोई भी आपसे पूछेगा हाउ आर यू, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे दैट ही इज़ गुड या फिर यू आर गुड, आप बोलोगे आई एम गुड, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है। इसलिए डियर का हमेशा आंसर क्या होता है, मियर होता है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वी गेट एस देम फाटर, मतलब जो पापा है, द फादर, हाउ इज़ द फादर डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देम फाटर क्यों यूज़ हुआ है, यहाँ पे देम फाटर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे गेट एस यूज़ हुआ है, और गेट एस क्या होता है, गेट एस है डाटिव वर्ब, इसलिए जो आर्टिकल भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाटिव। तो देयर फाटर का क्या चेंज हो गया, देम फाटर में चेंज हो गया, राइट। सो वी गेट एस देम फाटर, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, इसका आंसर आप दोगे, क्योंकि देम फाटर है तो देम फाटर यानी द फादर, तो इसका क्या आंसर दोगे। नॉमिनेटिव में फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्या आप लिखोगे, ही इज़ नॉट गुड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको देना है आंसर दैट ही इज़ नॉट डूइंग गुड। ठीक है, तो ही का मुझे पता है कि क्या होता है, एयर, लेकिन हमें चाहिए इसको डाटिव में, तो हमने क्या पढ़ा था कि एयर क्या बन जाता है, ईम बन जाता है, राइट। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि एयर ईम बन जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ईम गेट एस निस्ट गुट, नॉट गुड ना, तो निस्ट गुट। ठीक है, वैसे अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि गेट एस देयर ओम्मा, ठीक है, देयर ओम्मा यानी द ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देयर क्यों यूज़ हुआ है, आप बोलोगे ग्रैंड मदर तो दी होता है, यहाँ पे देयर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे गेट एस है, और गेट एस क्या है, गेट एस है डाटिव वर्ब। डाटिव वर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, डाटिव आर्टिकल, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, डाटिव। तो हमने पढ़ा है कि दी किस में चेंज हो जाता है, दी चेंज हो जाता है देयर में, तो देयर ओम्मा। तो आप क्या लिखोगे, अब फॉर एग्जांपल इसका आप आंसर क्या दोगे, दैट शी इज़ डूइंग गुड। ठीक है, कि वो अच्छी है, शी इज़ गुड, शी इज़ डूइंग गुड। ठीक है, शी इज़ वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल। तो शी हमें पता है कि नॉमिनेटिव में होता है जी, और हमें ये भी पता है कि ये होता है नॉमिनेटिव में, और हमें ये भी पता है कि डाटिव में जी चेंज हो जाता है ईयर में, है ना। हमने किया है यहाँ पे कि जी चेंज हो जाता है ईयर में, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, ईयर गेट एस वेरी गुड को क्या लिखूँगी मैं, जेयर गुड, कि जो ग्रैंड मदर है शी इज़ डूइंग वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड, है ना। तो हाउ इज़ द ग्रैंड मदर, शी इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ग्रैंड मदर के क्या हाल हैं, वो बहुत अच्छी हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, तो आई एम गुड। ठीक है, सो वी गेट इज डियर, मियर गेट इज गुड। हाउ इज़ द फादर डूइंग, सो ही इज़ डूइंग नॉट सो गुड। ठीक है, आपको बोला है ही इज़ नॉट डूइंग गुड, तो आप लिखोगे ईम गेट इज निस्ट गुड, है ना। तो देम क्या हो जाता है, देम हो जाता है ईम। ठीक है, देम जब भी हो क्वेश्चन में तो आंसर हो जाएगा आपका ईम। वैसे ही देयर जब भी हो क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ईयर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और अगर दी प्लूरल हो और अगर ये देन हो और पीछे एन हो क्वेश्चन में, तो आंसर हमेशा ईनन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि देम होगा क्वेश्चन में तो आंसर में ईम, देयर होगा तो ईयर, और देन प्लस एन यानी प्लूरल वाला होगा तो क्या हो जाएगा, ईनन हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल मतलब दे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा,
ईनन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको एक और करा देती हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि वी गेट एस देन किंडर्न, मतलब हाउ आर द चिल्ड्रन डूइंग, है ना, कि बच्चों का क्या हाल है। तो यहाँ पे देन है, इसलिए यहाँ पे एंड में क्या आ गया, एन आ गया। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देन क्यों आया, यहाँ पे दी किंडर क्यों नहीं आया, क्योंकि गेट एस क्या बताया था मैंने, डाटिव वर्ब है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यानी उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, डाटिव, और इसका आंसर भी डाटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है द चिल्ड्रन आर डूइंग गुड, मतलब बच्चों के हाल अच्छे हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे देन किंडरन है, अभी मैंने आपको बताया था कि देन प्लस एन है, तो क्या हो जाएगा, ईनन। सो ईनन गेट एस गुड। ठीक है, कि बच्चों के हाल अच्छे हैं, ईनन, है ना, उनके हाल अच्छे, तो ईनन जी यानी दे आर डूइंग गुड, तो दे क्या हो जाता है, चेंज, यानी जी दे वाला क्या चेंज हो जाता है, स्मॉल ईनन में। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है, वरना अगर बीच में आते सेंटेंस के तो ईनन स्मॉल आएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज सेंटेंस का स्टार्टिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है आई। ठीक है, तो ये तो था आपका एग्जाम्पल एस गेट का। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वेटून। वेटून का मतलब होता है पेनिंग। वेटून का मतलब होता है पेनिंग, यानी दर्द होना। ठीक है, वेटून। अब ये जो वर्ब वेटून है, ये है एक त्रेनवारन वर्ब, मतलब इसके दो पीसेस हैं। ठीक है, त्रेनवारन वर्ब्स हमने 7th में करे हुए हैं, उसमें हमें पता है कि ये जो एंड वाला वर्ब होता है ये बीच में कॉन्जुगेट हो जाता है, और ये जो स्टार्टिंग वाला वे है ये विदाउट एनी कॉन्जुगेशन एंड में चला जाता है हर सेंटेंस के बाद, या क्वेश्चन भी है तो वे हमेशा वे ही रहेगा, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी कॉन्जुगेशन, कुछ कॉन्जुगेशन और चेंज के बिना वो बस एंड में चला जाएगा। लेकिन जो हमारा पीछे आता है वर्ब, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, सो इश में टून ही रहेगा, नू में टूस्ट। ठीक है, ऐसे बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल टून जो है टूट होगा या फिर टून होगा। ठीक है, जो आपका टून है वर्ब पीछे, वो दो कॉन्जुगेशन हो सकती है उसकी, या तो इसकी होगी कॉन्जुगेशन टून या फिर होगी इसकी कॉन्जुगेशन टूट। ठीक है, सो ये जो टूट है, टूट आएगा सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और टून आएगा हमारा प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दी आउगन दिया हुआ है, तो दी आउगन पता है हमें कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि द आइज़ यानी दो आइज़ की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा टून। लेकिन अगर दी आउग यानी एक आँख की बात हो रही है, तो यहाँ पे टूट आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब वो सिंगुलर होगा तो हमारा टूट आ जाएगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो टून आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, वास टूट दियर वे। वास टूट दियर वे मतलब क्या दर्द हो रहा है आपको, मतलब क्या दर्द कर रहा है आपका, कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट दर्द कर रहा है आपको। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूँगी,
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है कि माई थ्रोट इज़ पेनिंग, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगी कि माई थ्रोट इज़ पेनिंग, मैं इसको ऐसे लिखूँगी कि मेरा गला दर्द कर रहा है। यस, जर्मन में हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे दैट माई थ्रोट इज़ पेनिंग या माई थ्रोट इज़ एकिंग, नो, वी विल राइट इट एज कि मेरा गला दर्द कर रहा है, ठीक है। मेरा गला मुझे दर्द कर रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? डियर का आंसर हमेशा मैंने आपको क्या बताया, और क्योंकि मुझे गला लिखना है, गला क्या होता है? हाल्स, हाल्स क्या होता है? सिंगुलर, सो मेयर टूट, और हाल्स हमें पता है कि क्या होता है? मास्कुलिन, सो देयर हाल्स वे, कि मेयर टूट देयर हाल्स वे। अब आप बोलोगे कि ये तो डाटिव केस था, तो यहाँ पे हमने देयर क्यों लिखा? देम नहीं होना चाहिए? नहीं, ये देखो, जो आपका देयर हाल्स है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या है? मेयर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा डाटिव वर्ब होता है, क्योंकि वेटून डाटिव है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा डाटिव, मेयर। लेकिन सब्जेक्ट हमारा चाहे कोई भी वर्ब हो, डाटिव हो, एक्यूजेटिव हो या नॉमिनेटिव, वो सब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन नॉमिनेटिव। जो एक्चुअल सेंटेंस होता है वो होता है देयर हाल्स टूट मेयर वे, देयर हाल्स टूट मेयर वे, ये है आपका एक्चुअल सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, तो इस सेंटेंस, ये आपका एक्चुअल सेंटेंस है, यानी ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव रहता है, ये रूल है, कुछ भी हो जाए, चाहे वर्ब आपका डाटिव हो, एक्यूजेटिव हो या नॉमिनेटिव हो, सब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन नॉमिनेटिव। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है, तो वर्ब डिपेंडेंट हो जाता है ऑब्जेक्ट पे। मतलब अगर वर्ब होगा डाटिव तो ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा डाटिव, अगर वर्ब होगा एक्यूजेटिव तो ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा एक्यूजेटिव, अगर वर्ब होगा नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वर्ब है डाटिव, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी जगह क्या हो गया? नियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली देयर हाल्स इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ही है, इसलिए वो कॉन्जुगेट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Was tut dem Vater weh, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि was tut ihm weh, लेकिन हम लिखेंगे was tut dem Vater weh, मतलब द फादर को क्या दर्द कर रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट दर्द कर रहा है। तो अगर आपको लिखना है कि देयर कॉप्स, की पापा जो द फादर है, देयर फाटर उनके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो देम फाटर उनके क्या हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है। तो इसका आंसर अगर आपको दिया हुआ है देयर कॉप्स, तो आप क्या लिखोगे? देम फाटर टूट देयर कॉप्स वे, ठीक है। इसमें भी देयर कॉप्स क्या है? सब्जेक्ट है। देयर कॉप्स क्या है? इसमें भी सब्जेक्ट है, इसलिए क्या रहेगा? नॉमिनेटिव, देम कॉप्स नहीं बनेगा। देम फाटर है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये हो जाएगा डाटिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट फॉर्म होगा देयर कॉप्स टूट देम फाटर वे, ठीक है। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। तो इसमें देखो हमें पता चल रहा है कि देयर कॉप्स क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम इसमें भी अप्लाई करेगा। वैसे ही इसको आप एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हो कि देम फाटर की जगह आप लिख सकते हो कि ईम टूट देयर कॉप्स वे, ठीक है। ईम टूट देयर कॉप्स वे, ठीक है, क्योंकि देयर फाटर की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? ईम, है ना।
देम के साथ क्या आ जाता है, इन। वैसे आप ये लिख सकते हो कि देयर कॉप्स टूट इन वे। ठीक है, वैसे ही एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है इस वर्ब के साथ, वेम टूट देयर कॉप्स वे। अब इसमें एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, वास, वेम और वेन का डिफरेंस। ठीक है, वेन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है आपका वास और वेम। ठीक है, तो वास है आपका नॉमिनेटिव, पहली चीज़, वेम है आपका डाटिव, दूसरी चीज़, और वेन है आपका आकुसाटिव। ठीक है, वास का मतलब होता है वॉट। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, वास, कि वॉट टूट देयर देम फाटर में वे। ठीक है, वास यानी क्या दर्द कर रहा है, तो इसमें आपको बता देना है कि देयर कॉप क्या दर्द कर रहा है, कॉप दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इसलिए वॉट। वेम का मतलब होता है हु, और वेन का भी मतलब होता है हुम, लेकिन ये आकुजाटिव के साथ होता है और ये डाटिव, तो वर्ड डिपेंडेंट करता है। अगर डाटिव वर्ब होगा तो वेन यूज़ होगा, आकुजाटिव वर्ब होगा तो वेन यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, वेम टूट देयर कॉफ, मतलब किसको, हु मतलब किसको दर्द कर रहा है, किसके सर में दर्द हो रहा है, बेसिकली किसको दर्द कर रहा है, किसका सर दर्द कर रहा है, ये इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है कि किसका सर दर्द कर रहा है। तो इसका आंसर फॉर एग्जांपल आपको देना है कि जो द ग्रैंडफादर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको आंसर देना है कि ग्रैंडफादर को सर दर्द कर रहा है, कि ग्रैंडफादर के सर में दर्द हो रहा है। तो इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या दर्द कर रहा है, नहीं, वो तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉप दर्द कर रहा है। वेम मतलब किसका सर दर्द कर रहा है, ठीक है, किसका सर दर्द कर रहा है। और यहाँ पे वेम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब डाटिव है। अगर यहाँ पे होती एक्विजाटिव तो यहाँ पे वेन आ जाता। तो इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल हमें देना है द ग्रैंडफादर, तो आप लिखोगे देम ओपा टूट देयर कॉफ वे, कि ग्रैंडफादर के सर में दर्द हो रहा है, या फिर देयर कॉफ टूट नेम ओपा वे। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। हमें आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि वास, वेम और वेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें हमारी जो तीसरी वर्ब थी वो थी आपकी स्मेकन। ठीक है, स्मेकन, स्मेकन का मतलब होता है बेसिकली टू टेस्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है स्मेकन का, टू टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे टू टेस्ट ये नहीं कि टेस्ट करने वाला, नहीं, खाने वाला नहीं। स्मेकन का मतलब होता है कि किसको टेस्ट पसंद है। ठीक है, कि किसको पसंद आया, किसको पसंद है इसका टेस्ट। ठीक है, कि किसको इसका टेस्ट पसंद है। फॉर एग्जाम्पल वेम स्मेक्ट देयर टे, वेम schmeckt, wem schmeckt their tea। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि who likes the tea। ठीक है, टीज टेस्ट, कि टी का टेस्ट किसको पसंद है, कि चाय किसको पसंद है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको इसका आंसर देना है कि द ग्रैंडफादर लाइक्स द टी, तो आप लिखोगे देम ओपा स्मेक्ट देयर टे, या फिर देम ओपा की जगह आप लिख सकते हो
schmeckt their Tee, या फिर आप लिख सकते हो meinem, ठीक है, मतलब मेरे, माइन जो होता है वो लिखा और पीछे MEM आ गया, क्यों, क्योंकि देम है ना तो EM आ गया। वैसे अगर देर होता तो माइनर हो जाता, ठीक है। तो देम ओपा schmeckt their Tee या फिर ईम schmeckt their Tee या फिर माइनम ओपा schmeckt their Tee। वैसे आपको लिखना है कि जो छोटी बच्ची है उसको पसंद है, तो आप लिख सकते हो देम मेडसन, ठीक है। मेडसन क्या होता है, गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे देम क्यों हुआ, क्योंकि मेडसन होता है दास, ठीक है। मेडसन क्या होता है, मेडसन होता है दास, और दास के लिए हम देम यूज़ करते हैं। सो देम मेडसन schmeckt their Tee, वैसे आप लिख सकते हो their Mutter schmeckt their Tee। बेसिकली इसमें आपको बस ये बताना है, इसमें आपको बस आर्टिकल का ध्यान रखना है कि चाय किसको पसंद है, चाय किसको पसंद है, चाय का टेस्ट किसको पसंद है, तो ग्रैंडफादर को पसंद है, तो देम हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि schmecken भी क्या है आपका डाटिव वर्ब है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, डाटिव। तो देम ओप्पा, ठीक है, देम मेडसन, देन मोटर। अब इसमें क्या है, इसमें देयर टे है सब्जेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा हमेशा नॉमिनेटिव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयर टे schmeckt ihm, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आपसे पूछा जा रहा है वेम schmeckt their Tee मतलब किसको चाय का टेस्ट पसंद है। सो देम ओपा schmeckt their Tee, देम मेडसन schmeckt their Tee या फिर देयर मोटर schmeckt their Tee। वैसे आपको जो भी चाहिए आप वो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल में आपको लिखना है, प्लूरल में आप क्या लिखोगे, प्लूरल में हमेशा क्या होता है, देन प्लस एन। सो देन किंडर, और पीछे क्या आ जाएगा आपका एन, है ना, क्योंकि देन प्लस एन हो जाता है। सो देन किंडर schmeckt their Tee, या फिर आप लिख सकते हो कि देन एल्टर्न, एल्टर्न होता है ना, एल्टर्न schmeckt their Tee, ठीक है। ऐसे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। सो यही थे आपके जितने भी थे वर्ब्स। एक और वर्ब है आपका वैसे, ठीक है। फेलन का मतलब होता है बेसिकली टू फील, ठीक है। फेलन का मतलब होता है टू फील। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि was felt टीना, ठीक है। तो हाउ इज़ टीना फीलिंग, ठीक है, टीना को क्या फील हो रहा है ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसमें बेसिकली यूजुअली इसमें यूजुअली आपको बताना होता है कि ये यूजुअली पूछा जाता है डॉक्टर्स की तरफ। फॉर एग्जांपल व्हाट हैज़ हैपन टू यू, टू फील इसका होता है, लेकिन यूजुअली डॉक्टर्स के पूछा जाता है कि व्हाट हैज़ हैपन्ड टू यू होता है इसका बेसिक मतलब, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जा रहा है वास फेल्ट डियर, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है हाउ आर यू फीलिंग, तो आप बोलोगे गुड, नहीं, हाउ आर यू फीलिंग इसका मतलब नहीं होता। इसका एक्चुअल मतलब होता है व्हाट हैज़ हैपन टू यू, कि आपको क्या हुआ है, वास फेल्ट डियर, कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है। हाउ डू यू फील, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, बेसिकली कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, वास फेल डियर, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि इश हैव फीवर, ठीक है। तो इश हैव फीवर कि आपके साथ क्या हुआ है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। बेसिकली डॉक्टर्स के पास जाते हो तो पूछेगा वास फेल डियर, आपके साथ क्या हुआ है, व्हाट इज़ हैपन टू यू, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तो आप लिखोगे, आप बोलोगे हैव फीवर। या फिर फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने टून वे भी हमने वर्ब सीख लिया, तो आप ये भी लिख सकते हो कि नियर टून दी ओरन वे,
ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि नियर टू देयर कॉप्स वे। ठीक है, बेसिकली जब भी आपका वास फेल डियर, वास फेल टीना, डियर है तो आप लिखोगे मियर मियर, ठीक है, या फिर इशहाब फीवर। अब यहाँ पे इश क्यों आया हाबा के साथ, क्योंकि हाबा अकुजाटिव है इसलिए। तो या तो आप लिख सकते हो इशहाब फीवर, या फिर आप लिख सकते हो मियर टून देयर ओरन वे, मियर टून देयर कॉप वे, ये सब आप लिख सकते हो। वैसे अगर आपसे पूछा गया है कि वास फेल्ड टीना, तो यहाँ पे टीना के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ईयर, है ना, क्योंकि टीना क्या है, दी हमें पता चलता है देयर में हो जाता है, और देयर का प्रोनाउन क्या होता है, ईयर। तो ईयर आप लिख सकते हो टूट देयर हाल्स वे, कि उसके गले में दर्द हो रहा है। व्हाट इज़ हैपन टू टीना, कि उसके गले में दर्द हो रहा है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे। Now this was all for part 1 of grammar. The part 2 will contain the imperative sentences. जितने भी आपके imperative sentences है वो हम next वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस, और बाकी हमारा पूरा ग्रामर ऑलमोस्ट हो चुका है, बस imperative sentences बचे हैं, और उसके बाद मैं आपको सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब कराने वाली हूँ। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share it with your friends and family, and subscribe my YouTube channel. If you have any doubts, feel free to comment. Thank you. Bye.